Hello students, here we will discuss the topic of class 9 chapter 1 motion and we will derive here the second equation of motion by graphical method. Okay, student, whenever it says the graphical method, then we need to make this graph. Okay, and after making this graph we can easily derive the first equation, second equation as well as the third equation. But here we will solve the position time relation, that is the second equation of motion, and the equation is s equal to ut plus half at square. How we can solve it, how we can make this formula by using this graph. Okay, so student, first of all we will understand this graph here. Okay, it is what? It is a velocity time graph. Okay, we are talking about here velocity time graph. Student, suppose a car is moving. Okay, that has some initial velocity. Okay, means that is moving with 20 meter per second or 30 meter per second, but that has some velocity and that velocity is not zero. Okay, if velocity is not zero, then definitely at a particular time, suppose at 10 am we are saying, okay, और अगर हम 10 बजे देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, then definitely what will happen? There is some velocity, suppose 20 meter per second. Then we will not show that point here. If we are drawing a line from here, it means at the start of time the object was in rest, but it is moving from here. The object was not in rest. Okay. Then on this line, this velocity line, this particular portion, this portion. Okay, it will show us initial velocity, and we know that we show the initial velocity by u. After certain time, suppose after 10 seconds, it covers certain distance and it increases its velocity also, u to v. Okay, then suppose after 1 second it was here, after 2 seconds it was here, after 3 seconds it was here. Means velocity is continuously increasing, and after certain time, suppose at this point the velocity will be at b, means the respective velocity will be at point d on this velocity line. मतलब जैसे ये पॉइंट b पर पहुंचेगा, कुछ समय बाद गाड़ी जब चल रही है, कार जब चल रही है, तो उसकी स्टार्टिंग में वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी पहले से थी, लेकिन उसने वेलोसिटी अपनी बढ़ाना शुरू की. अगर वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, देन इट इज व्हाट? इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन आल्सो. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि हर बार जितने टाइम पे वो गैप पे वो वेलोसिटी बढ़ा रहा है. ओके, मतलब हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है हर बार प्रीवियस पोजीशन के रिस्पेक्ट में. इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें, अगर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड था, तो ऑब्वियस सी बात है b पर कितना होगा? ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं 80 मीटर पर सेकंड. तो मतलब वेलोसिटी बराबर बढ़ रही है. ओके, सो हियर इट इज सेइंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट द पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यहां तो मैंने लिख के दिखाया है, बट आपको पहले लिख के नहीं दिखाना है. आप क्या करोगे? पहले इसमें स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से, दैट लेट एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग and it has some initial velocity u. Okay, and after certain time it covers certain distance and reached at the point b. Okay, so उसके बाद हमें क्या करना है? हमें पता है कि इस वाले रिलेशन में हम एक्चुअल में डिस्टेंस निकाल रहे हैं. ओके, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन में ये जो लाइन है, इसके नीचे का पूरा एरिया, ओके, इसके नीचे का पूरा एरिया वो हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस कवर्ड बताएगा. ओके, अब हम पहले देख लेते हैं कौन सा एरिया. स्टूडेंट्स, एक बात का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल, कि जो ये लाइन है AG, और यहां पे मैंने एक लाइन और बना रखी है, दैट इज GC and GB and here is DB. ओके, स्टूडेंट, कीप इन माइंड दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. हमने सिर्फ इस पॉइंट से इस लाइन पे डाला था ताकि हमें पता लग जाए कि इस वाले पॉइंट तक पहुंचने में इसे कितना समय लगा, और इस पॉइंट से इधर वाले एक्सिस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला था, ऐसे इधर परपेंडिकुलर डाल रखा था ताकि हमें पता लग जाए कि
बी पॉइंट पे पहुंचने पर इसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। ये कोई लाइन हमें मेजर नहीं करनी और ना ही इसमें कुछ करना है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें इसके दोनों पॉइंट पता लगाने हो, हमने 9th क्लास में पढ़ा है ग्राफ में कि दो पॉइंट होते हैं x और y, ओके। बट यहाँ पर x है क्या, x एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ पे हम टाइम और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। टाइम कैसे पता लगेगा, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे गिराएंगे, और वेलोसिटी कैसे पता लगेगी, जब यहाँ से परपेंडिकुलर इधर वाले लाइन पे गिराएंगे, ओके। एंड ये लाइन मैंने यहाँ पे इसलिए खींची है ताकि मैं ये वेलोसिटी इधर भी रिप्रेजेंट कर सकूं, पता लगा सकूं कि यहाँ पर कितनी है, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें बात में यहाँ पता लगाना है कि डिस्टेंस कवर क्या होगी। डिस्टेंस कवर्ड होगी इस पूरी लाइन के नीचे जो ये एरिया दिख रहा है, ओके। इसे लाइन कर देता हूं मैं, पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया, ओके, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया, इन दोनों एरिया को जब मैं जोड़ दूंगा तो इस लाइन के नीचे मतलब हमने इस मतलब ए पॉइंट से बी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर की वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। सो डिस्टेंस कवर्ड हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी जी, ओके, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए जी सी ओ, ओके। ए जी सी ओ, मैंने रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बना के दिखा दिया यहाँ पे, ओके। सो अब हमें इनका एरिया पता होना चाहिए। डिस्टेंस कवर वो किससे शो करते हैं हम, एस से। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीजी, हमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। सो यहां पर 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, बेस है हमारा एजी, और हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, बीजी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें पता है एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हमें लेंथ पता है कितनी है, ओसी, और हमें इसकी चौड़ाई पता है वो कितनी है, AO, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AO मल्टीप्लाई बाय OC, ओके। सो अब इसे 1 by 1 रखेंगे। स्टूडेंट्स, इस O पॉइंट से C पॉइंट तक इसने कुछ टाइम T लिया है, तो वही टाइम, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो अगर ये रेक्टेंगल है O से लेके C तक अगर टाइम T था तो OC तो हमारी AG के बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ओके। अगर ये T था नीचे वाला तो ऊपर वाला भी कितना होगा, T होगा, ओके। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय T। हमें BG की वैल्यू नहीं पता स्टूडेंट्स, 0 से O से लेके B तक ये पूरा फाइनल वेलोसिटी कवर करके गया था, ओके। यहां से बिल्कुल O पॉइंट तक इसने फाइनल वेलोसिटी ली थी, लेकिन हमें चाहिए BG। BG कब निकलेगा, जब हमारा AD निकल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है, DBGA, अपोजिट साइड बराबर होंगी। अगर हमें BG चाहिए तो कैसे निकलेगा, पहले हम AD निकाल लें। AD कैसे निकलेगा, अगर मैं इस वाली वेलोसिटी में से इस वेलोसिटी को घटा दूं तो हमें निकल के आ जाएगा ये वाला पोर्शन, और इस पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देते हैं, ओके। लेकिन हमें BG फाइंड करना है, और BG किसके बराबर है, BG तो AD के बराबर है, अपोजिट साइड है, और अगर ये अपोजिट साइड है तो मतलब इसको मैं B माइनस U लिखूंगा, ओके। स्टूडेंट, हमने पिछले उसमें भी देखा था कि एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं तो v माइनस यू की वैल्यू हो जाएगी at, तो मतलब मैं v माइनस यू को एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम भी दिखा सकता हूं। तो मतलब bg की वैल्यू कितनी है, 80। इट्स मीन हम यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, ओके। यहां पर कितना था, बेस इंटू हाइट, ओके, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ OC कितनी है,
OC तो हमारी T है और AO कितनी है, AO हमारी U है, U मल्टीप्लाई बाय T। ओके, सो S इक्वल टू 1/2 T से T में मल्टीप्लाई करेंगे, अलजेब्रा की तरह करना है हमें। इट विल बी 1/2 AT स्क्वायर, इट विल बी UT। हम इसको आगे पीछे लिखने तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन और द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकाला हमने, फिर से देखते हैं। इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल करके पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला। ओके, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या था, ये वाली लाइन, हाइट कौन सी थी, ये वाली लाइन, और यहाँ पे L इंटू बी। L कौन सा था, ये, और B ये। अगर ये है तो ये भी होगा, अगर लेंथ ये ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाली भी लेंगे। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABG प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AGCO। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, AG। AG की वैल्यू किसके इक्वल है, OC के, क्योंकि OC का टाइम था यहां से लेके यहां तक। ओके, अगर ये T है तो ये भी T होगा, इसकी वैल्यू अगर T है तो हमने दिखा दिया OC इक्वल टू AG इक्वल टू T। और अब हमें यहाँ पे BG पता लगाना है। BG कैसे पता लगाएंगे, जब हम यहाँ पे AD पता लगा लेंगे। AD कैसे पता लगेगा, जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे तो हमें इतना पोर्शन पता लग जाएगा। ओके, वेलोसिटी के लाइन पर वेलोसिटी ही निकल के आएगी। ओके, अगर ये AD है तो ये BG, ये भी कितना हो जाएगा, B माइनस C। और हमें पता है B माइनस C किसके बराबर होता है, AD के बराबर होता है। तो 1/2 T इंटू AD प्लस U इंटू T, S इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर प्लस UT, या फिर S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। It is the second equation of motion.